सर अपना माइक ऑन करिए। सर सर कुछ अपना बोलिए माइक ऑन सर। करिए। In previous class, I have already explained you how यस सर। to determine the delta, that is power angle, and voltage regulation of a salient pole type synchronous generator. When I have derived, and then we have derived the expression of power developed in a salient pole synchronous generator. So when I have derived, we have derived the expression, that is B P is equal to EFB upon XD sin delta plus B square by 2 ब्रैकेट में 1 by x cube minus 1 by x du bracket close sin 2 delta. You see this power, there is a two component. One is the electromagnetic power. This is EF BXT sin delta is the electromagnetic power, and B square by 2 1 by x cube minus 1 by xd sin 2 delta is the reluctance power. So this is having two components, that is electromagnetic power and reluctance power. There are two components in this. First component is the electromagnetic power. This is similar to the cylindrical rotor machine. In cylindrical, but that is in this case, that is reluctant power. That power will be reluctance power. This is due to the nonce आपका, that is due to change in the reluctance in the case of, when this is reluctance is changed, due to this power will be developed in the case of salient pole So this reluctance power is only coming in the case of salient pole rotor. Now we derive the power developed in a cylindrical rotor. Power developed in a cylindrical rotor, when you derive, you see first there are two type of power. दो तरह का power होता है, that is active power and reactive power. That is having two components of power developed, that is active power and reactive power. If you see the phasor, अगर phasor diagram आप देखें, that is phasor diagram of a salient, that is cylindrical rotor synchronous motor. ये phasor diagram, that is not, this is equivalent circuit of a synchronous cylindrical type synchronous generator. Equivalent circuit जो cylindrical type synchronous generator का, this is the equivalent circuit है. ये already मैं आपको explain कर चुका हूँ. What is this excess synchronous reactance? This reactance is sum of armature reaction reactance and plus armature leakage reactance, and Ra is the armature resistance. So this is the complete equivalent, and this is load. EF is the voltage induced due to field excitation, and B is the terminal voltage. क्योंकि आप फेजर डायग्राम में यू आर टेकिंग B एज ए रेफरेंस, इसलिए इसको आप शो कर सकते हैं B जो है एट 0 डिग्री. एंड आपको अभी मैं सेलियंट पोल में भी बता रहा, दिस इज डेल्टा एंगल जो है किसके किसके बीच में होता है, दैट इज बिटवीन B एंड EF, नो लोड इंड्यूस वोल्टेज एंड फेस वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज के बीच दिस वैल्यू डेल्टा होता है. एंड इन दिस केस EF इज लीडिंग. EF जो होता है वोल्टेज से V से, दैट इज डेल्टा डिग्री लीड करता है, which I have already explained you previous class. तो this can be written, इसलिए इसको हम
EF डेल्टा एंगल पर लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज एट डेल्टा एंगल इन रेफरेंस विद द B। तो इसमें आप देखें पावर इनपुट कहां से हो रहा है, दिस पॉइंट। आपके आर्मेचर जो पावर इनपुट हो रहा है दैट इज दिस पॉइंट, क्योंकि हमने आपको बताया है कि पावर इनपुट एंड आउटपुट बोथ हैविंग टू कंपोनेंट, दोनों जो है दो कंपोनेंट पाते हैं, दैट इज एक एक्टिव कंपोनेंट एंड सेकंड इज द रिएक्टिव कंपोनेंट। यू कैन राइट यस आई जी, आई माने इनपुट, जी माने जनरेटेड, जो इनपुट पावर जो है मशीन में आता है दैट इज पी आई जी प्लस जे क्यू आई जी। मतलब ये जो है पी आई जी इज द एक्टिव पार्ट ऑफ पावर एंड जे क्यू आई इज द रिएक्टिव पावर पार्ट ऑफ पावर। इसी तरह पावर आउटपुट कहां पर होगा, एट दिस पॉइंट, तो जहां पर लोड कनेक्टेड है, एंड दिस इज डिनोटेड बाय एसओजी, पावर आउटपुट। पावर आउटपुट इनपुट having active and reactive part, so power output will also having POG plus JQOG, वो माने वो indicate output power। तो इस तरह से if you see how we'll derive this, first we derive the complex power, already दिया हुआ है, B is terminal voltage per phase, EF is excitation voltage per phase, IA is armature current, and delta is phase angle between EF and B. EF, this is known as a power angle, torque angle or load angle। इसको power angle, torque angle and load कर। अब आप जो है फेजर डायग्राम ये ऑलरेडी फॉर सिलिंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मोटर में ड्रा किया जा चुका है, एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस फेजर डायग्राम। तो सिमिलर वी हैव टेकन, कितना होगा, EF कितने के बराबर होगा, हमने वोल्टेज इक्वेशन जब डिराइव किया था, EF इज इक्वल टू B प्लस IARA प्लस JIAXS, ये वोल्टेज इक्वेशन डिराइव किए थे, जिसके बेस पर ये फेजर डायग्राम ड्रा किया गया। तो वी हैव टेकन B एज ए रेफरेंस एंड IA इज लैगिंग विथ B। दिस फेजर डायग्राम इज फॉर इंडक्टिव लोड्स, तो इसलिए I जो है करंट जो है IA B से लैग करेगा एंगल फाई। तो B के लिए IA ड्रा किए, एंड देन व्हाट अबाउट द IA, EF इज इक्वल टू B प्लस IARA, तो IARA फिर से along with IA होगा, और देन IAXS फेजर that is at 90 degree to IA, and then you have draw this EF। in this way you have find out the EF, इसको अगर मिला दें you find out the EF। तो for a synchronous generator EF leads B, आपने देखा इसमें क्या है, EF जो होता है एंगल डेल्टा B से लीड कर रहा है, मतलब ये अप साइड है, इट मींस इट इज लीडिंग। यहाँ पर IA क्या है, लैग कर रहा है, क्योंकि इट इज B के नीचे है, इसलिए दिस इज लैगिंग। यहाँ पर जो है EF जो है B से डेल्टा डिग्री लीड कर रहा है, इसलिए B, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज हमने लिया है, इसलिए वी कैन राइट B इज इक्वल टू B एंगल 0 एंड EF विथ एंगल डेल्टा, क्योंकि इट इज लीडिंग विथ B। द सिंक्रोनस इंपेडेंस इज गिवन बाय, सिंक्रोनस इंपेडेंस कितना हुआ, if you see the circuit diagram, ZS is equal to RA plus JXS, or ZSS you can write theta Z, where theta Z is the impedance angle। theta Z को हम impedance angle, अगर impedance triangle आप ड्रा करें, this is the impedance angle, this is RA, this is XS, and this is the ZS, and theta Z is this angle, angle CAB is theta Z, and this angle is alpha Z, and this is the 90 degree। So in this way, what about the, if you see this impedance triangle, अगर इस impedance triangle को लेते हैं तो tan theta Z की वैल्यू क्या होगी, that is BC upon AB, BC, this BC upon AB, BC कितने के बराबर है, X के बराबर है, AB कितने के बराबर है, RA, तो दिस इज इक्वल tan theta Z is equal to XS by RA, और theta Z
इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाई आर। इस तरह से थीटा जेड की वैल्यू you can find out if the value of xs and ra is known. And alpha z, if you see in this triangle, alpha z कितना है 90, ये दोनों एंगल का सम कितना है 90 है, ये 90 है, टोटल तीनों एंगल का कितना होता है 180, तो 90 माइनस थीटा जेड ये जो है, देन अगर अल्फा जेड की वैल्यू हम फाइंड आउट करें दैट इज tan इनवर्स टू अल्फा जेड कितने हुआ आर ए अपॉन एक्सएस, तो दैट इज tan इनवर्स आर ए बाई एक्सएस। द आर्मेचर करंट आपने, इफ यू टेक द circuit diagram, previous circuit diagram, what will be the value of EF? EF delta is equal to B0, that is B angle 0 plus ZS angle theta Z plus IA. Drop, total drop in the आपका armature circuit, that is ZS is the impedance of armature circuit, and from this equation 1 you can find out the value of IA. तो IA कितना होगा दैट इज EF डेल्टा माइनस V0 अपॉन ZS थीटा जेड। तो IF की वैल्यू दैट इज सेकंड इक्वेशन। लेट द सब्सक्राइब I जो है इनपुट पावर देता है, वो जो है आउटपुट पावर, G इज द जनरेटर। तो जनरेट कितना पावर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ जनरेटर का है, ये सिंबल्स डिनोट करता है। तो हम कॉम्प्लेक्स पावर आउटपुट ऑफ द जनरेटर पर फेज, मतलब कॉम्प्लेक्स पावर का फर्स्ट हम कॉम्प्लेक्स पावर को फाइंड आउट करते हैं जिसमें एक्टिव एंड रिएक्टिव बोथ पावर है। तो दैट इज एसओजी पावर आउटपुट, कॉम्प्लेक्स पावर आउटपुट ऑफ द जनरेटर, जो कि मैं ऑलरेडी फिगर में आई हैव शोन दैट इज दिस पावर इज द, यहाँ पर जो है जो पावर आउटपुट मिल रहा है एसओजी इज इक्वल टू पीओजी प्लस जेक्यूओजी। तो यहाँ पर हम इस पावर को वी आर टेकिंग कॉम्प्लेक्स आउटपुट पावर ऑफ द जनरेटर पर फेज एसओजी, इसको हम लिखते हैं एसओजी इज इक्वल टू पीओजी प्लस जेक्यूओजी। मतलब पीओजी जो है एक्टिव पावर आउटपुट एंड क्यूओजी इज द रिएक्टिव पावर आउटपुट। This is the active power output and this is the reactive power. ये कितने के बराबर होगा, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पावर है इसलिए करंट जो हम लेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करंट लेंगे IA स्टार। IA स्टार इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करंट। तो this is equal to this POG real output power per phase and QOG reactive power output per phase. I स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करंट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। अब I की वैल्यू अगर आप पुट कर दें प्रीवियस इक्वेशन से, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशंस, अगर प्रीवियस इक्वेशन से I की वैल्यू पुट कर दें आप, दिस इज I इज इक्वल टू EF डेल्टा माइनस B0 ZS थीटा Z। अगर इससे आप I की वैल्यू पुट कर दें, यू पुट B0 एंगल multiplied by EF delta minus B0 upon ZS theta Z and complex conjugate. So you can write this expression in the form of B0 EF delta ZS upon theta Z minus B0 ZS, इसको हम दोनों को अलग अलग कर देंगे, EF delta upon ZS theta and minus B0 angle ZS थीटा जेड। अब इसको हम लिख सकते हैं दैट इज V एंगल 0 एंड EF ZS, ए एंगल को हम, ये दोनों एंगल को वी कैन राइट डेल्टा माइनस थीटा जेड माइनस B थीटा जेड, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस थीटा जेड हो जाएगा। नाउ यू रिमूव द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रिमूव करेंगे तो जो एंगल नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वी कैन एसओजी जो है पावर आउटपुट जो होगा कॉम्प्लेक्स पावर आउटपुट जो है दैट इज इक्वल टू BEF बाई ZS थीटा जेड माइनस डेल्टा इनटू B स्क्वायर, B को हमने भीतर ले लिया इसलिए B स्क्वायर ZS, दिस इज माइनस था प्लस हो जाए थीटा जेड,
प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस, थीटा डैश माइनस डेल्टा। तो इक्वेशन इन दिस वे वी हैव फाइंड द कॉम्प्लेक्स पावर। अब इनका रियल इनको एक्सपेंड करिए। हाउ विल एक्सपेंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस? इसके दो पार्ट है, रियल एंड इमेजिनरी। इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन। अगर इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेशन को लिखें तो पीओजी प्लस जे क्यूओजी कितने के बराबर होगा? बी ई एफ जेड एस। पहला पार्ट कौन सा उसमें? बी ई एफ जेड एस। बी ई एफ जेड एस थीटा जेड। पहले इसका हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, दैट इज वी ई एफ जेड एस कॉस थीटा जेड माइनस डेल्टा प्लस जे बी ई एफ एक्स साइन थीटा जेड माइनस डेल्टा। फिर दूसरे पार्ट को हम लेंगे, इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, दैट विल बी माइनस बी स्क्वायर जेड एस कॉस थीटा जेड माइनस जे बी स्क्वायर जेड एस साइन थीटा जेड। तो इस तरह से अब रियल पार्ट को एक में ले लेते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट को दूसरे ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो यू दिस इज द पीओजी, कितने के बराबर? पीओजी प्लस जे क्यूओजी एंड बी ई एफ बाई जेड एस कॉस थीटा जेड माइनस डेल्टा माइनस बी स्क्वायर जेड एस कॉस थीटा जेड प्लस जे बी ई एफ जेड एस साइन थीटा जेड माइनस डेल्टा माइनस बी स्क्वायर जेड एस साइन थीटा जेड। तो ए रियल पार्ट हो गया, दिस इज एक्टिव पावर हो गया एंड दिस इज रिएक्टिव पावर। तो पावर आउटपुट कौन सा होगा? दैट इज पीओजी, एक्टिव पावर, रियल आउटपुट पावर। अब हम रियल आउटपुट पावर एंड इमेजिनरी और रिएक्टिव पावर्स को कैलकुलेट करेंगे। इक्वेटिंग, इसमें रियल पार्ट कितना है? दैट इज पीओजी, और इसमें रियल पार्ट कितना है? दिस इज बी ई एफ cos theta z minus delta minus b square zs cos delta a, that is real। इसको ये दोनों बराबर होंगे। POG is equal to BEF ZS cos theta z minus delta minus b square ZS cos theta z। अब रियल आउटपुट पावर निकालने के लिए फर्स्ट वी टेक द रियल पोर्शन POG इधर से एंड दिस इज द रियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर का, दिस इज द रियल पार्ट वी टेक इक्वेट। अब थीटा जेड की वैल्यू कितनी है? इफ यू टेक द इम्पीडेंस एंगल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा जेड? थीटा जेड इज cos थीटा जेड इज इक्वल टू आर ए बाई जेड एस। इफ यू सी द इम्पीडेंस एंगल as I have already shown, this is the cos theta z is equal to आर ए बाई जेड एस। अब cos इस आर ए बाई जेड एस की वैल्यू यहाँ cos थीटा के स्थान पर हम पुट कर देते हैं। तो वी फाइंड द इक्वेशन POG पावर आउटपुट is equal to BEF ZS cos theta z minus delta minus B square ZS RA। क्योंकि यहाँ ZS था एंड RA by ZS आएगा तो ZS स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज RA एंड RA की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने इम्पीडेंस ट्रायंगल में देखा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा जेड? दैट इज 90 डिग्री माइनस अल्फा जेड। You have seen already seen, you put in the place of theta z 90 degree minus alpha z। थीटा जेड के स्थान पर 90 डिग्री माइनस अल्फा जेड आप पुट कर दें, then you find the value of output power in terms of alpha, delta and alpha z। So this is VEF by cos 90 degree minus delta plus alpha z minus B square by ZS RA। तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम, क्योंकि 90 डिग्री माइनस डेल्टा प्लस अल्फा जेड है, ये कितने के बराबर होगा? साइन डेल्टा प्लस अल्फा जेड। तो पीओजी पावर आउटपुट इज इक्वल टू बीईएफ बाई जेड एस साइन डेल्टा प्लस अल्फा जेड माइनस बी स्क्वायर जेड एस आर ए। इस तरह से आप दिस इज द दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, बोथ एक्सप्रेशन इज द पावर active or real power output of the from the you are getting real। इसी को हम POG को ही हम पावर डेवलप्ड बाय ए सिंक्रोनस जनरेटर, इसी को हम यहाँ कंफ्यूजन, रियल पावर को ही हम पावर डेवलप्ड इन ए सिंक्रोनस जनरेटर हम कहते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी यही पूछा जाता है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पावर डेवलप्ड इन ए सिंक्रोनस जनरेटर।
तो जितना अभी हमने डिराइव किया है टोटल डिराइव करके आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दिस इज पीओजी इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड बाय द सिंक्रोनस जनरेटर। इसी को हम पावर डेवलप्ड इन द सिंक्रोनस। अब हम आते हैं रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर तो हमने डिराइव कर दिया, कितना पावर डेवलप्ड हो रहा है। नाउ वी टेक द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। देखिए इस एक्सप्रेशन में दिस इज द सेकंड पार्ट। वी टेक द सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज द QOG। रिएक्टिव पावर कितना है, दैट इज QOG। इट इज इक्वल टू द reactive portion of this expression. We equate these two, so we find out the reactive output power per phase of the generator QOG. Equating imaginary part of equation 6, we get QOG. QOG कितने के बराबर होगा, BEF by ZS sin theta Z minus delta minus B square by ZS sin theta Z। तो ये एक्सप्रेशन जो है B square ZS, this is the imaginary portion or reactive portion of the complex power का है। तो both will be equated। यहाँ पर sin थीटा जेड की वैल्यू क्या होगी, साइन है इसलिए वहां क्या था, cos था, तो RA by ZS था, यहाँ पर साइन है, then XS by ZS होगा। दिस इज if you find out from the impedance triangle। तो ये QOG is equal to BEF by ZS साइन थीटा जेड माइनस डेल्टा माइनस बी स्क्वायर बाई, ये वैल्यू आप यहाँ साइन थीटा जेड के स्थान पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई जेड एस स्क्वायर एंड एक्सएस। तो दिस इज द वन पार्ट ऑफ द, दिस इज द रिएक्टिव पावर इन टर्म्स ऑफ थीटा जेड। रिएक्टिव पावर जो है आपका जो है आउटपुट पावर, रिएक्टिव आउटपुट पावर एक्सप्रेशन इज दिस। सेकंड, अगर थीटा के स्थान पर यू अल्फा जेड आप पुट करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा जेड। तो आप QOG का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे BEF बाई ZS साइन 90 डिग्री माइनस डेल्टा प्लस अल्फा जेड माइनस बी स्क्वायर ZS स्क्वायर इंटू एक्सएस। तो ये दिस इज द power, reactive power output of a synchronous machine QOG is equal to BEF theta Z ZS cos delta plus alpha Z minus B square Z square XS। तो in terms of alpha Z है and पहला एक्सप्रेशन in terms of theta Z था। 9 जो था थीटा जेड को लेकर के हमने रखे थे और यहाँ अल्फा जेड। तो these two equation is known as a रिएक्टिव पावर आउटपुट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन को हम रिएक्टिव पावर आउटपुट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। अब वी फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द जनरेटर पर फेज POG मैक्स। POG मैक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, दैट इज वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द जनरेटर कब होगा, जब हम POG को डेल्टा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे एंड इक्वेट करेंगे जीरो। तो डी POG अपॉन डी डेल्टा, POG कितना है BEF बाई ZS साइन डेल्टा प्लस अल्फा जेड माइनस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर RA। क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डेल्टा तो दिस विल बिकम जीरो, और ये जो है साइन है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस। तो इफ यू डिफरेंशिएट दिस d अपॉन डी डेल्टा BEF by ZS sin delta plus alpha Z is equal to 0. Since BEF ZS and RA are constant, ये वैल्यूज जो है कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए BEF ZS cos डेल्टा प्लस अल्फा Z is equal to 0। ये जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, ये कन्वर्ट cos डेल्टा प्लस अल्फा हो जाएगा एंड दिस विल बी जीरो। एंड क्योंकि ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट चीजें हैं, इट विल बिकम जीरो। तो cos डेल्टा प्लस अल्फा जेड इज जीरो। ये कब जीरो होता है cos, व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री। तो डेल्टा प्लस अल्फा जेड इज 90 डिग्री एंड डेल्टा इसलिए कितने के बराबर होगा, दैट इज 90 माइनस अल्फा जेड, 90 माइनस अल्फा जेड इज इक्वल टू थीटा जेड। तो डेल्टा जब अल्फा थीटा जेड के बराबर होगा तो मैक्सिमम पावर डेवलप करेगा।
तो if you draw a maximum power curve, if you draw, this is v square by ra, ये वैल्यू को डेल्टा के स्थान थीटा जेड को पुट करें तो यू फाइंड दिस एक्सप्रेशन, दैट इज वी ई एफ बाई जेड एस, मैक्सिमम पावर डेवलप जो पाएंगे बी ई एफ बाई जेड एस, बी ई एफ बाई जेड एस माइनस बी स्क्वायर जेड एस स्क्वायर आर ए, दिस अकर्स एट डेल्टा इज इक्वल टू थीटा जेड। अब हम एक कर्व ड्रा करेंगे पीओजी वर्सेस डेल्टा के बीच में ड्रा करेंगे, तो दैट व्हेन डेल्टा इज एट दिस पॉइंट, व्हेन डेल्टा इज जीरो, द पावर आउटपुट विल बी जीरो, एंड जैसे जैसे डेल्टा बढ़ेगा पावर आउटपुट बढ़ता जाएगा, एंड एट दिस पॉइंट व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू थीटा जेड, देन दिस विल बी मैक्सिमम, और इसके बाद जो है पावर घटता जाता है एंड मशीन इज विल फॉल आउट ऑफ स्टेप। जब डेल्टा थीटा जेड से बराबर हो जाता है तो मशीन जो है धीरे धीरे बंद हो जाती है। इसके बाद आप लोगों का सरप्राइज कुछ होगा जो है 12:35 पर गूगल क्लास पर, तो सभी लोग जो है इसके बाद सरप्राइज कुछ के लिए जाएं और गूगल क्लास पर जो है सभी लोग सरप्राइज कुछ को अटेंड करें। तो इन दिस वे पावर आउटपुट, क्या मैक्सिमम पावर आउटपुट की कंडीशन है, डेल्टा इज तो अरे यार पर डे क्यूज होती है क्या?